Hello students, let us start with our question number 6 of exercise 9.1. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक 30 meter tall building, let AB be the building, उससे कुछ distance पे एक 1.5 meter tall boy है हमारे पास. Let CD be the height of the boy. और height of building दी है हमें 30 meter tall building. So the height of the building is 30 meter. Is standing. Now the angle of elevation from his eyes. Obviously हम eyes से ही तो देखते हैं. So observer की eyes जहाँ से है वहीं से आपको horizontal बनाना है. अब observer की eyes से जो building के top का angle of elevation है, that is given as the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. पहले एंगल ऑफ एलिवेशन उसी टॉप का 30 डिग्री था और बाद में जब उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट अस सपोज CD पोजीशन से वो EF पोजीशन पर आ गया, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग से है 30 की प्लेस पर 60 डिग्री. लेट दिस पॉइंट बी M. 1.5 अगर ये है तो ये भी 1.5 होगा. तो रिमेनिंग अगर मुझे AM डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 30 माइनस 1.5 विच इज 28.5. Now let us see what they are asking us to find. Find the distance he walked towards the building. तो ये CD से जो EF पोजीशन इसने एक्वायर करी है, कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा है, यानी हमें DF फाइंड करना है. यहाँ पर DF वी हैव टू फाइंड. DF उतना ही होगा जितना CE होगा, तो मेन हमारा फोकस है कि हम CE डिस्टेंस निकालें. तो CE के लिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम राइट ट्राइंगल देखते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें राइट ट्राइंगल चाहिए. तो एक राइट ट्राइंगल AME. इन राइट ट्राइंगल AME, AM हमारे पास एंगल के सामने वाली साइड ऑलरेडी पता है 28.5, यानी एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर हमें पता है और बेस हमें फाइंड करना है. तो 1060 इज P अपॉन B. 1060 की वैल्यू होती है √3 और इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है AM और बेस है EM. AM डिस्टेंस ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं 28.5. कैसे फाइंड किया है हमने AM? AB में से MB को माइनस करके. एक और बार मैं यहाँ लिख देती हूँ. AM इज AB माइनस MB विच इज 30 माइनस 1.5 दैट इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर. अब EM हमें फाइंड करना है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता. वी ऑलवेज टेक एज 1. नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो EM इज 28.5 अपॉन √3. कभी भी रूट को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, हमेशा रेशनलाइज करते हैं. तो √3 नीचे है तो ऊपर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी. 28.5 √3 will become 3. √3 will become 3. Now if you will cancel out, 3 9s are 27, 3 5s are 15. 9.5 √3 meter. Now the second triangle, right triangle is AMC. In right triangle AMC, tan 30 is perpendicular upon base again. So tan 30 is perpendicular. We have AM. Base we have CM. For this triangle the base is CM. Now tan 30 is 1 upon √3. AM is 28.5. CM we have to find, so we will write as it is. Cross multiplication. CM is 28.5 √3 meters. Now we have CM and EM, both the distances. We have to find CE. CE कैसे find करेंगे? CM minus EM. CM minus EM. CM is 28.5 √3 minus 9.5 √3. माइनस करेंगे you will get 19 √3.
Now we all know that the value of root 3 is 1.73. So if you will multiply 19 with 1.73, you will get 32.87 meter as your answer. This is CE. जितना CE है उतना ही हमारे पास क्या है, DF. तो DF भी हमारे पास कितना आ गया, 32.87 meter as your answer. So now let's move on to our next question, that is question number 7. Question number 7 is very easy. From a point on the ground, the angles of elevation, first of all see a point on the ground. तो ground पे हमारे पास एक point है A, let us suppose. The angle of elevation of the top and the bottom of a transmission tower, यानी point से, ground पे किसी point से हम एक transmission tower को देख रहे हैं जो कि fixed है at the top of a 20 meter high building. एक बिल्डिंग हमारे पास है, लेट अस सपोज CD इज अ बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग पे एक ट्रांसमिशन टावर है BC. लेट BC बी द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर विच इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग. अगर CD हमारे पास बिल्डिंग है जो कि 20 मीटर हाइट है, 20 मीटर हाई है, और BC इज द ट्रांसमिशन टावर जिसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, लेट अस सपोज इसकी हाइट कितनी है, H. Now from the point on the ground, the angle of elevation of the top and the bottom of tower are 60 and 45. ग्राउंड से जो हमारे पास टावर है हम उसी के टॉप को एक बार देख रहे हैं और सेकेंड टाइम हम उसी के बॉटम को देख रहे हैं. तो हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन रिस्पेक्टिवली का मतलब टॉप के लिए 60 डिग्री है और बॉटम के लिए 45. नाउ दिस इज आवर राइट ट्राइंगल. What we have to find, height of tower. तो let the height of the tower be H, यानी CB we have to find, वो हमने H मान ली है. फिर से अगेन ट्रिग्नोमेट्री हम सिर्फ राइट ट्राइंगल्स में यूज कर सकते हैं. तो लेट फर्स्ट राइट ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल वी कैन टेक. लेट अस सपोज ACD. इन राइट ट्राइंगल ACD अगर हम ACD लेते हैं तो इन ACD 1045 डिग्री. Again 10 is perpendicular upon base, tan theta is P upon B. तो 45, 1045 परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के ऑपोजिट साइड मीन्स CD फॉर दिस ट्राइंगल एंड बेस AD. 1045 की वैल्यू होती है 1, CD की वैल्यू ऑलरेडी गिवन 20. सो फॉर AD इफ यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई you will get AD is 20 meter. AD as 20 meter. Now the next right triangle. Always try to find right triangles. एक ट्राइंगल CDA है, दूसरा BDA. BDA में भी अगर आप 1060 लगाएंगे, अगेन 10 है एंगल. क्यों 10 लगाया है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है या नोन है कुछ, और बेस हम ऑलरेडी निकाल चुके, तो हाइपोटेन्यूज का कोई यूज नहीं है, इसलिए 10. इस ट्राइंगल के लिए BDA के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BD, और अगेन बेस अभी भी क्या है, AD. और 1060 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, √3. नाउ √3 एज इट इज. BD की वैल्यू, BD को हम ऐसे लिख सकते हैं BC प्लस CD, और AD की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 20 मीटर. कहाँ से, यूजिंग फर्स्ट. नाउ BC की प्लेस पर स्मॉल h जो कि हमें निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, एंड CD इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग ऑलरेडी गिवन 20. नाउ दिस अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो h plus 20 will be equal to 20 √3 plus 20 when goes to other side it will become minus 20. Now we can take 20 common, √3 minus 1. Now the height is 20. Again √3 की प्लेस पर √3 minus 1. नेक्स्ट स्टेप पे हम √3 की वैल्यू रखें 1.73 minus 1. 1.73 minus 1 is 0.73. Now if you will multiply 20 with 0.73 you will get 40.60 meter as your answer, height of the tower. Now let's move on to our next question, that is question number 8. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. एक स्टैचू है
जो कि कितनी हाइट का है, 1.6 मीटर, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑलमोस्ट सेम एज प्रीवियस, क्योंकि इन दिस हमारे पास जो स्टैचू है वो एक पेडिस्ट्रियल पे है. किसी भी स्टैचू को हम थोड़ी सी हाइट पर, कुछ हाइट पर रखते हैं, तो उस हाइट जो हमने हाइट जो बनाई है उसे हम पेडिस्ट्रल बोलते हैं. अब हमारे पास स्टैचू, लेट ए बी द स्टैचू विच इज 1.6 मीटर टॉल एंड इट इज केप्ट ऑन अ पेडिस्ट्रियल. ये एक पेडिस्ट्रियल पे है जिसकी हाइट हमें अननोन है, नहीं पता. लेट अस सपोज इट बी h. नाउ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अगेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60. इस पॉइंट से, डी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, स्टैचू के टॉप का जो एलिवेशन है अगेन हमारे पास कितना है, 60 डिग्री. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडिस्ट्रियल इज 45 डिग्री. इसी पॉइंट से अगर हम पेडिस्ट्रियल के टॉप को देख रहे हैं तो हमारा एंगल है 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्ट्रियल. पेडिस्ट्रियल की हाइट हमें फाइंड करनी है. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड सी बी. Let it be h. Again we will find right triangles. First right triangle, as you can see, BCD. In right triangle BCD 1045, फिर से हम 1045 ही लगा रहे हैं क्योंकि हाइपोटेन्यूज का कोई यूज नहीं है. एक ऐसी साइड होनी चाहिए जो नोन हो और दूसरी ऐसी अननोन, या फिर दोनों अननोन, बट यहाँ पर जो चीज दोनों ट्राइंगल में कॉमन हो. फॉर एग्जाम्पल इस ट्राइंगल में भी ये साइड सी डी कॉमन है, बिगर ट्राइंगल ए सी डी में, और बी सी डी में भी यही साइड कॉमन है. तो जो चीज़ कॉमन है उसे हमें ज़रूर लेना है, यानी हमें इस एंगल के लिए बेस भी लेना है और परपेंडिकुलर तो हमें फाइंड ही करनी है. तो बी परपेंडिकुलर इज बी सी और बेस हमारे पास है सी डी. 1045 की वैल्यू होती है 1, बी सी की वैल्यू है h, सी डी हमें नहीं पता. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी डी भी h ही आ गया है. डोंट वरी, सी डी हम आगे निकालेंगे, वी विल यूज दिस. अभी हमारे पास वैल्यू तो नहीं आई है, बट ये पता लग गया है कि सी डी भी उतनी ही हाइट है, सी डी भी h के ही इक्वल है, यानी उतनी की ही हाइट के इक्वल है जितनी पेडिस्ट्रियल की हाइट है. नाउ इन नेक्स्ट राइट ट्राइंगल, बिगर वन इज ए सी डी 1060. Again 1060 is perpendicular upon base, which means AC upon CD. 1060 की वैल्यू हमारे पास होती है √3. AC को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.6 प्लस h. AC को हम ऐसे लिख सकते हैं AB प्लस CB, यानी 1.6 प्लस h. और CD हमारे पास अगेन कहाँ से लाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज h. CD की प्लेस पर हम लिख सकते हैं CD की वैल्यू h. कहाँ से आया ये h, फर्स्ट इक्वेशन से. डिनोमिनेटर नहीं गिवन है तो 1. नाउ द इजीएस्ट मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. h, नाउ वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन अदर. √3h ऑलरेडी हमारे पास लेफ्ट पर है, प्लस h भी इधर आएंगे तो माइनस h. h कॉमन ले लें तो √3 - 1 इक्वल्स टू 1.6. नाउ h के जो मल्टीप्लीकेशन में है, व्हेन इट गोज टू अदर साइड इट विल गो इन डिवीजन, दैट इज √3 - 1. नाउ h इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 1.732 -1, 1.73. it will become 0.73. when you will divide this you will get your answer as 2.184. when you will divide it you will get your answer as 2.184 meter. Now let's move on to our next question, that is question number 9. The angle of elevation of top of a building, और यू कैन कीप योर आंसर लाइक दिस ऑल्सो. आप अपना आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, रूट तक भी, √3 - 1, और यहाँ पर रेशनलाइज भी करते हैं कुछ लोग. फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1.6 √3 - 1 को कैसे रेशनलाइज करेंगे, √3 + 1 √3 + 1. एक और मेथड है कि आप रेशनलाइज कर दो. अब आप इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे,
यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारे पास हाइट आ गई है 1.6 ब्रैकेट √3 + 1। अब आइडेंटिटी होती है हमारे पास a - b और a + b। सबको पता है a - b और a + b किसके इक्वल होता है, a² - b²। तो वही आइडेंटिटी भी कई बार यूज करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो 1.6 × √3 + 1 और रूट का स्क्वायर करेंगे तो 3 - 1, यू विल गेट 1.6। 3 - 1 is 2 और अगर आप डिवाइड करोगे तो 0.8 × √3 + 1। तो हाइट इतनी भी आप छोड़ सकते हैं, 0.8 √3 + 1 मीटर। Either you can keep your answer in this, write your answer in this way, or you can solve it completely. Now move on to our next question, question number 9. The angle of elevation of the top of a building from a foot of a tower. एक बिल्डिंग की लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहाँ से, द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टार इज 30 डिग्री। टार के फुट से अगर हम देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन तो वो कितना है 30, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टार फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। अब अगर हम टॉप से देखते हैं टार के फुट ऑफ द बिल्डिंग तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60। इफ द टार इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये क्वेश्चन हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज इसमें हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है इसकी करेक्ट फिगर नहीं बना पाते, क्योंकि इसमें हमें ये नहीं पता कि टावर की हाइट बड़ी है या बिल्डिंग की हाइट बड़ी है। अब इसमें हम अपनी कोई कॉमन सेंस भी नहीं लगा सकते कि टावर बड़ा बनाए या बिल्डिंग, तो इसमें दोनों पॉसिबल केस बनाकर देखते हैं। तो पहले मैं केस ले रही हूँ, फिर हम देखेंगे कि हमारे लिए फिगर कौन सी करेक्ट है। पहले हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल केस हो सकते हैं। पहला केस ये कि अगर हाइट ऑफ टावर हमारे पास जो है वो बड़ी है किससे, हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि हमें हाइट ऑफ टावर तो पता है 50 मीटर, पर बिल्डिंग की हाइट तो नहीं पता। तो क्या पता वो 50 से वैल्यू बड़ी आएगी या छोटी आएगी। तो ये केस अगर मैं ले रही हूँ, यानी मैं टावर को बड़ा ले रही हूँ और बिल्डिंग को ले रही हूँ स्मॉल, तो अगर ये मेरे लिए टावर है और ये मेरे लिए क्या है, बिल्डिंग। पहले मैं आपको इसमें पूरी फिगर ही क्लियर करती हूँ। अगर टार ये हमने AB लिया है टार और CD ली है बिल्डिंग, तो फिगर बनाते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, फ्रॉम द फुट ऑफ अ टार, टार के फुट से, तो कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप को देख रहे हैं फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, तो कितना बन रहा है 60। अब नेक्स्ट और क्या केस हो सकता था, तो सेकंड केस देखते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि हाइट ऑफ बिल्डिंग है ग्रेटर देन हाइट ऑफ टावर, बिल्डिंग की जो हाइट है वो टावर से बड़ी है, तो ये मेरे लिए बिल्डिंग हो जाएगी AB, और ये मेरे लिए टार हो जाएगा CD, और AB हो जाएगी इस केस में बिल्डिंग। अब देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टार इज 30। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो टॉप है फुट ऑफ टार से कितना एंगल है, एलिवेशन 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टार, टार के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के फुट से है वो कितना है 60 डिग्री। अब हम कैसे जज करें कि कौन सी फिगर करेक्ट है, फर्स्ट या सेकंड? तो आपको हमेशा पता है कि आप जितनी भी हाइटेड चीज को देखेंगे, आप ये डेली लाइफ में भी देखते हैं कि अगर हम हाइटेड चीज को, जितनी भी हाइट, जिसकी हाइट है ग्रेटर हाइट वाली चीज को देखेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए हमें ज्यादा एंगल जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा इंक्रीज करना पड़ता है, बड़ा होता है। और यही आप किसी स्मॉल हाइट चीज को देखोगे तो आप कम एंगल ऑफ एलिवेशन से देखते हो, यानी जितनी ज्यादा ग्रेटर इज द हाइट ग्रेटर इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बात किस में करेक्ट बैठ रही है, यहाँ पर हाइट भी ग्रेटर है तो एंगल भी बड़ा है, हाइट छोटी है तो एंगल छोटा है। यहाँ देखते हैं, यहाँ हाइट तो है ग्रेटर पर एंगल है 30, और यहाँ हाइट है छोटी बट एंगल है 60, तो इट मीन्स दिस केस इज
wrong, and the figure for this question is this one, that is this figure is correct. Now we have drawn the correct figure. अब हमें correct figure draw करनी आ गई है, तो अब हम इसका solution भी correct कर सकते हैं. तो let's see कि कैसे इसका solution correct करना है हमें. Question number 10 का कैसे हम question number 10 को अब solve करेंगे. Distance, height of the building कैसे निकालेंगे. तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन की फिगर को हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं. सॉल्यूशन नंबर 9. क्विकली मैं इसकी फिगर ड्रॉ करती हूँ. CD इज द बिल्डिंग, ये हम बता चुके हैं, और AB इज द टार. और पहले ही हमने ये जज कर लिया है कि टार हमारा जो है वो बड़ा है और इसकी हाइट ऑलरेडी गिवन है 50 मीटर क्वेश्चन में. और हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें निकालनी है, लेट इट बी h, और ये हमने मान लिया कितनी, h हाइट. अगेन मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा हमें वो चीज़ लेनी चाहिए जो दोनों में कॉमन हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे पहले राइट ट्राइंगल देखेंगे कौन से हैं. एक तो ABD है और दूसरा CBD है. तो कोई भी एक राइट ट्राइंगल आप पहले ले सकते हो, विच एवर यू वॉन्ट. इन राइट ट्राइंगल ABD 10 60, 10 ही क्यों लगाया, क्योंकि परपेंडिकुलर, एंगल के ऑपोजिट चीज परपेंडिकुलर मुझे ऑलरेडी पता है, और बेस यहाँ इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और दूसरे ट्राइंगल में भी आ रहा है, इसलिए मैंने P/B यानी 10 की रिलेशन यूज करी है. तो इस ट्राइंगल के लिए ABD के लिए 10 60 क्या हो जाएगा, AB/BD. 10 60 की वैल्यू होती है √3. AB की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 50. BD फाइंड करना है तो BD आ जाएगा 50/√3 मीटर. अब आ जाते हैं नेक्स्ट राइट ट्राइंगल पे, दैट इज BCD. BCD ये राइट ट्राइंगल है. इस राइट ट्राइंगल में भी 10 30 अगर हम यूज कर रहे हैं, दैट इज CD/BD. CD इज H, BD कहाँ से आएगा, फर्स्ट इक्वेशन में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. 10 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3, और BD हमारे पास यूजिंग फर्स्ट विच इज 50/√3. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो √3 into H is equals to 50/√3. Now the height is √3 will become 3. So you can now convert this 50/√3, you can write it as 50/√3, or you can convert it in decimal. You can convert this question in decimal. 50/3 को आप decimal में भी convert कर सकते हैं, and when you will convert this question in decimal, you will get 16.67 meter as your answer. Now let's move on to our next question, that is question number 10. Let's see. Two poles of equal height are standing opposite to each other on either side. पहले फिगर ड्रॉ करना इन क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिगर के भी आपके पास मार्क्स होते हैं. दो पोल हैं जो इक्वल हाइट के हैं. लेट AB एंड CD बी द टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट. ऑलरेडी बोला है कि दोनों की हाइट कैसी है, इक्वल. एंड दोनों जो हैं ऑन ईदर साइड, एक इस साइड है तो दूसरा रोड के इस साइड है, यानी BD हमारे पास रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है. एक BD रोड के लेफ्ट साइड पर है, द सेकेंड वन इज ऑन लेफ्ट एंड वन इज ऑन राइट, एंड विच इज 80 मीटर वाइड. और ये जो हमारे पास रोड है ये 80 मीटर वाइड है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड. अब रोड पर किसी भी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, जो दो पोल्स के एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 और 60. अब कौन सा 30 होगा और कौन सा 60? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जिसकी हाइट बड़ी होती है उसका एंगल बड़ा होता है, लेकिन यहाँ तो दोनों ही हाइट इक्वल है. अगर ये h है तो ये पोल भी तो सेम हाइट का है h, तो फिर कैसे जज करेंगे कि किसका एंगल बड़ा होगा? अब आप जब भी किसी चीज़ के
क्लोज जाते हैं, द मोर क्लोज यू विल गो, जितना पास जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको ऊपर एंगल देखना पड़ेगा, उतना ही आपको अपने नेक को मूव करना पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी जितना हम किसी चीज के क्लोज होते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन तब भी ज्यादा होता है। तो दैट इज वाई, क्योंकि ये एम पॉइंट बी के ज्यादा क्लोज है तो ए बी पोल से 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, और डी से थोड़ा फार है इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30। अगेन नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड राइट ट्राइंगल। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। एक तो दोनों पोल्स की हाइट निकालनी है और वो कितने कितने डिस्टेंस पर है इस पॉइंट से ये पता करना है। अगर ये डिस्टेंस लेट अस सपोज बी एम एक्स है तो एम डी कितना होगा, टोटल 80 है तो 80 माइनस एक्स, ये पूरा 80 है, अगर इतना एक्स होगा तो बचा हुआ रिमेनिंग 80 माइनस एक्स। अब राइट ट्राइंगल में आते हैं। इन राइट ट्राइंगल ए बी एम 1060, फिर से हाइपोटेन्यूज का कोई यूज नहीं है तो 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 1060 इज √3। परपेंडिकुलर क्या है इस ट्राइंगल के लिए, ए बी इस एंगल के हिसाब से, और बेस बी एम। नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज √3 एज इट इज, ए बी की प्लेस पर h और बी एम की प्लेस पर x। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हाइट आ जाएगी √3x। डोंट वरी कि हाइट की कोई वैल्यू नहीं है, ये अल्फाबेट में ही आया है आंसर, इसको आगे यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट राइट ट्राइंगल। इन राइट ट्राइंगल सी डी एम अगेन 1030 परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी सी डी अपॉन एम डी। सी डी इज h, एम डी इज 80 माइनस एक्स। 10√3 की वैल्यू हमारे पास 1/√3 होती है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, √3h इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। अब h की वैल्यू तो कितनी है, √3x, कहाँ से पता लगा, फर्स्ट इक्वेशन से। तो यहां पर मैंने h की वैल्यू पुट कर दी है, इस h की यूजिंग फर्स्ट। √3 is 3. Now minus x when goes to other side it will become plus x. तो then 4x is equals to 80. तो अगर 4x 80 है तो x कितना आ जाएगा, 80/4 which is 20 मीटर। नाउ x is 20 मीटर, हमने अभी x निकाला है। अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू तो h कितनी आ जाएगा, √3 into 20 which is 20√3 मीटर। यानी हाइट ऑफ द पोल्स तो कितनी आ गई है, 20√3 मीटर, जो कि हमें फाइंड करनी थी। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू 20√3 मीटर। अब इनके डिस्टेंसेस, अगर एक डिस्टेंस हमारे पास बी एम था जो कि हमें फाइंड करना था कि एम पॉइंट से पोल ए बी पोल कितने डिस्टेंस पे है और सी डी पोल, तो बी एम और एम डी हमें ये फाइंड करने थे। बी एम तो हमने एक्स ही लिया है और एक्स कितना है 20 मीटर, और एम डी हमारे पास है 80 माइनस एक्स, दैट मीन्स 80 माइनस 20 विच इज 60 मीटर। सो वन पोल, both the poles are of height 20√3 meter and one pole is at 20 meter distance and other pole is at 60 meter distance from point M. Now let's move on to our next question, that is question number 11. A TV tower stands vertically on a bank of canal. Bank यानी कि एक रिवर के किनारे पर, कैनाल के किनारे पर एक टीवी टावर है। From a point on the other bank directly opposite to the tower. अब उसी कैनाल के एक साइड पर तो हमारे पास टीवी टावर है, लेट ए बी द टीवी टावर, और दूसरी साइड पर एक पॉइंट है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। From another point 20 meter away from the point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal.
ध्यान से देखेंगे, टीवी टार से किसी पॉइंट से हमारे पास जो एक एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60, और इसी से 20 मीटर हम और अगर आगे चले जाएं, 20 मीटर अगर हम और आगे चले जाएं, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम, इससे 20 मीटर दूर एक पॉइंट है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन इसी टार का कितना है, 30 डिग्री होना भी था, क्योंकि अगर हम किसी पॉइंट से दूर जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होता है. नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस टार. तो लेट अस सपोज द हाइट ऑफ द टार बी h एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल. विड्थ ऑफ द कैनाल वी हैव टू फाइंड, यानी कि ये कैनाल जो है इसकी विड्थ कितनी है, क्योंकि एक साइड पर हमारे पास स्टार था और दूसरे पॉइंट पर हमारे पास जहां से हम एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं, तो ये भी हमें फाइंड करना है BC डिस्टेंस. तो वी हैव टू फाइंड CB एंड AB, बोथ द थिंग्स वी हैव टू फाइंड. इन राइट ट्राइंगल, सबसे पहले हमेशा राइट ट्राइंगल देखते हैं. इन राइट ट्राइंगल ABC 1060 इज इक्वल्स टू AB अपॉन CB. 1060 देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB इज h, CB वी डोंट नो, सी विल राइट एज इट इज. सो CB आ जाएगा h अपॉन √3. मार्क इट एज 1. नाउ द नेक्स्ट इज इन राइट ट्राइंगल, एक और राइट ट्राइंगल ले लेते हैं, ABD. ABD 1030 इज AB अपॉन BD. 1030 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 अपॉन √3 एंड AB इज h. BD हमारे पास, BD को हम ऐसे लिख सकते हैं CB प्लस 20 या CB प्लस CD. 1 अपॉन √3 एज इट इज, हाइट एज इट इज. CB की प्लेस पर h अपॉन √3 और CD एज इट इज. CD की प्लेस पर 20, CD ऑलरेडी गिवन है हमारे पास 20 मीटर. अब सॉल्विंग कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. इट मीन्स h अपॉन √3 प्लस 20 इज √3h. अल्फाबेट्स ऑन वन साइड, नंबर्स ऑन अदर. 20 को यहीं रहने देते हैं, √3h माइनस h अपॉन √3. अगर हम h कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1 अपॉन √3, और अगर यहाँ पर हम LCM ले लें तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 20. नाउ 3 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 20. सो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 1 इज 2, h ऑलरेडी प्रेजेंट. अगेन हाइट फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 2 into h is 20 √3. So h is 20 √3 upon 2. So height is 10 √3 meter. So the height of the vertical tar is either 10 √3 or you can put the value of √3 as 1.732. एक तो हमें हाइट फाइंड करनी थी AB, जो कि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. AB इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द टार इज इक्वल्स टू √3 मीटर. दूसरा हमें CB फाइंड करना था, CB डिस्टेंस. CB डिस्टेंस इज h अपॉन √3. दैट मीन्स 2 √3 अपॉन √3. √3 कैंसिल आउट √3. तो CB जो हमारे पास क्या था, डिस्टेंस, और वी कैन से विड्थ ऑफ द कैनाल, वो हमारे पास आ गई है 10 कैंसिल आउट 10, √3 कैंसिल आउट √3, सो 10 मीटर. Now answers are CB and AB. One is 10 √3, this is 10 √3 and this is 10 meter. So that's all for today. For next questions, for the question number 12 to question number 16, do see the next video.